بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی فرقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میسیج۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو ہماری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے۔ آج کا سوال ہے اور آج کا ٹاپک بھی ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کیسے تلاش کریں اور شب قدر کیسے گزاریں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس ٹاپک پہ یہ ویڈیو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی آمد ہے، لہذا آئیے آج ہم اس قدر کی رات کے بارے میں ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو اس قدر فضیلت اور برکت والی رات کیوں بنایا ہے۔ سورۃ القدر قرآن مقدس کی مکمل ایک سورت ہے جس میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ رات برکت والی، رحمت والی، فضیلت والی رات کیوں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ انا پر زور ہے یہاں پہ، یعنی یہ ہم ہیں، کوئی اور نہیں، کوئی انسان نہیں، جن نہیں، فرشتہ نہیں، بلکہ یہ ہم ہیں، تمام جنوں کے خالق، تمام انسانوں کے خالق، تمام فرشتوں کے خالق، تمام آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ، یہ ہم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، اور قرآن واضح ہوا کہ یہ عام کلام نہیں، کسی انسان کا، کسی جن کا، کسی فرشتے کا، کسی اور مخلوق کا نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کا کلام ہے، اور نازل کرنے کے سلسلے میں جس فرشتے کو رسول بنایا گیا، پیغامبر بنایا گیا، بھیجنے والی جو مخلوق ہے جس کے ذریعے بھیجا گیا وہ جبرائیل امین ہے، اور وہ بھی عام فرشتے کی طرح نہیں، بلکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مطاع ثم امین، کہ بڑی قوت والا ہے وہ فرشتہ، وہ عام فرشتہ نہیں، طاقت والا فرشتہ ہے، امین ہے، امانت دار ہے، اس فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا۔ پھر جس شخص پر اتارا گیا، جن کے قلب اطہر پر یہ کلام اتارا گیا، وہ عام انسان نہیں، بلکہ وہ بھی خیر البشر۔ وہ کون سے انسان ہیں؟ جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الاولین والآخرین، تمام اگلوں پچھلوں کے سردار ہیں، اس ذات پر اتارا گیا یہ کلام۔ اور پھر
जिस शहर में ये उतारा गया वो शहर भी आम शहरों से बिल्कुल मुनफरिद और जिसकी अलग से हैसियत है, जिसे कुरान ने कहा बलदुल अमीन, अमन वाला शहर। और जिस रात में अब इसे उतारा गया उस रात का तज़किरा है कि हमने इस रात में लैलतुल कद्र, जो बड़ी ही कद्र व मंजिलत वाली रात है, जो इंतहाई शरफ वाली रात है, उस रात में हमने इस कुरान को उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम क्या जान सको ये लैलतुल कद्र क्या है? यानी तुम्हारी अक्ल ही कितनी है, तुम्हारी सोच ही कितनी है, तुम्हारी फिक्र उस कदर बालिग नहीं है कि तुम जान सको, पहचान सको इस रात की कद्र। ये रात क्या है, तुम क्या जान सको? वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। बस इतना जान लो, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये जान लो कि ये जो रात है लैलतुल कद्र, ये 1000 महीने से अफजल रात है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। और इस रात में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल अमीन, यानी फरिश्तों के सरदार भी, जिब्रील अमीन भी इस रात अपने रब का हर हुक्म लेकर। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। सरासर सलामती है यह रात, तुलुए फज्र तक पूरी सलामती है यह रात। अब इस रात के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि ये कौन सी रात है। बहरहाल तकरीबन सबका इत्तिफाक इस बात पे है कि इस रमज़ानुल मुबारक की इसका जो आखिरी अशरा है उसकी ताक रातों में इसे तलाश किया जाए। 5 रातें हैं, 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है और 29वीं शब। इन्हीं में इसे तलाश किया जाए। बल्कि डॉक्टर इसरार अलैहिर्रहमा की यह राय है कि अगर इससे मुराद शब ही ली जाए और ताक शब ही ली जाए, फिर उनके नजदीक ये वो शब होगी जो मक्का और मदीना की शब है। लिहाजा यहाँ टू बी सेफर हम ये कहेंगे कि हमें सिर्फ ताक रातों पर ही इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करना चाहिए ये आखिरी अशरे की तमाम रातों में तलाश करें हम इस कद्र और मंजिलत वाली रात को। ये बेहतर हमारे लिए यही है। वरना अगर इतना नहीं कर सकते, दीगर मुफस्सरीन के नज़दीक जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं, तो कम अज़ कम इन ताक रातों में तो हमें तलाश करने की, जुस्तजू करने की हमारे अंदर वो एक तड़प पैदा हो जानी चाहिए, बार बार अपने आप को ये समझा कर कि अल्लाह तबारक व तआला जिस शब के बारे में कहे कि ये बड़ी ही कद्र मंजिलत वाली शब है। और इसके माने कद्र मंजिलत के अलावा भी मुफस्सरीन किराम ने बयान किए हैं कि ये तकदीर साज रात है, यानी इसमें तकदीर लिखी जाती है। गोया 1 साल का मंसूबा अमल वो फरिश्तों के सुपुर्द किया जाता है और वो लेकर उतरते हैं जमीन पर। और सिर्फ उतरते नहीं बल्कि उसकी तनफीज और तहकीम के बाद वो वापस भी लौटते हैं। जिस तरह से सूरतुस सजदा आयत नंबर 5 में अल्लाह का इरशाद होता है, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़, कि वो तदबीर करता है हर मामले की, तमाम मामलात की, आसमान से जमीन तक जितने भी मामलात हैं उनकी तदबीर करता है वो इस रात में। सुम्मा यअरुजु इलैह, और सिर्फ तदबीर ही नहीं करता बल्कि उसके बाद इस रूदात को ऊपर उसके हुजूर पेश भी किया जाता है। गोया तकमीली रिपोर्ट लेकर भी फरिश्ते वापस चले जाते हैं। वो सिर्फ हुक्म लेकर ही नहीं उतरते, हुक्म लेकर उतरते हैं, उसको नाफिज करने के बाद वापस भी चले जाते हैं और तकमीली रिपोर्ट भी पेश की जाती है अल्लाह के हुजूर।
اور اس رات کو سورۃ الدخان میں لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہاں حامیم اور اس کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، اسے لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ انا کننا منذرین، آگے فرمایا ہم تو ڈرانے ہی والے تھے، ہم تو خبردار کرنے ہی والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں یفرق ایشو کیے جاتے ہیں تمام دانائی کے فیصلے، حکمت بھرے فیصلے۔ امرم من عندنا، کمانڈ فرام اور پریزنس، امرم من عندنا، یہ امر ہے، کمانڈ ہے، حکم ہے ہماری طرف سے، یعنی ہمارا ہی حکم لے کر یہ فرشتے اترتے ہیں اور اس کی تنفیذ کی جاتی ہے، مکمل تنفیذ کی جاتی ہے، اور پھر تکمیلی رپورٹ لے کر بھی واپس آ جاتے ہیں فرشتے اور اللہ کے حضور اسے پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا ان آیات کی روشنی میں ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے کہ یہ کس قدر عظیم رات ہے، کس قدر اس میں فیوز و برکات رکھی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز سے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہمیں کچھ دعائیں سکھائی بھی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اس رات کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو تو بہت بہت معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے۔ گویا اس دعا کو ہم بار بار دہرائیں گے اس رات میں، اور اس کے علاوہ اس رات کے سلسلے میں ہماری یہ گزارش رہے گی کہ ہم جو آنے والی رات ہے اب، بلکہ جتنی بھی یہ طاق راتیں ہیں، ان میں ہم کیا کریں گے، رات کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، برابر 4 حصوں میں۔ ایک حصے میں ہم نوافل کا اہتمام کریں گے، کیونکہ بدنی عبادت کی جو بہترین صورت ہے وہ نوافل ہے، نماز ہے۔ لہذا ایک حصے میں ہم نوافل ادا کریں گے، ایک حصہ اس رات کا ہم رکھیں گے تلاوت کلام پاک کے لیے۔ قرآن ہی اس رات میں نازل ہوا ہے، اور یہی قرآن اسی کی وجہ سے اس رات کی اس قدر و منزلت ہے، شرف اسے حاصل ہے۔ لہذا اسی قرآن کی تلاوت کے لیے خوش الہانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف تلاوت ہی نہیں کریں گے، بلکہ حق کا تلاوت ہی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں جس حد تک ہم سے ہو سکے۔ تو ایک حصہ ذکر، تسبیح اور تحمید کے لیے، یعنی اللہ کا ذکر کریں گے۔ اس کی کون سی صورت ہوگی، کون سا ذکر آپ پسند کریں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا ذکر آپ کریں گے۔ جس انداز سے بھی آپ سے ہو سکے، اللہ کے ذکر کی کئی صورتیں ہیں، آپ وہ ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود اور سلام بھی بھیجیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں، رکھے ہیں، نہ صرف اس رات کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ درود اور سلام بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ فوراً پہنچا دیتے ہیں، جن کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ درود اور سلام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ لہذا دیکھیے آپ کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ جب آپ تسبیح اور تحمید میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، عرش پر آپ کا تذکرہ ہوگا، عرش پر بھی آپ کے تذکرے، اور پھر جب آپ کا درود اور سلام پہنچایا جائے نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، تو وہاں بھی آپ کے تذکرے۔ تو آپ سے خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ کی دعائیں کیوں کر قبول نہ ہوں؟ تو یہ تیسرا حصہ آپ رکھیں گے رات کا، اور چوتھا حصہ پھر دعا کے لیے۔ اور دعاؤں میں جو میں نے ابھی
अर्ज किया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ तो है, इसको करेंगे ही हम। इसके अलावा भी जरूरी नहीं कि आप अरबी में करें, अपनी जुबान में, अपनी जो भी जिसको हाजत हो, अपनी दुनिया बेहतर बनाने के लिए, अपनी उक़बा बेहतर बनाने के लिए, अपने लिए आप दुआ करें, अपने घर वालों के लिए आप दुआ करें, वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए, अजीज व अकरबा के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, बल्कि पूरी दुनियाए इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए आप दुआ करें, जिस कदर भी आपसे हो सके। और खुसूसन आज जिन हालात से हम दो चार हैं, जो वबा इस वक्त आम हो रही है, इससे बचने की दुआ, इसको हटाने की दुआ, और इसके साथ साथ हम पर और हमारे भाई बंदों पर जो जुल्म सितम इस वक्त रवा रखा जा रहा है बातिल कुव्वतों की तरफ से, इस सिलसिले में इस जुल्म से नजात की दुआ भी की जाए अल्लाह से इस रात में। यकीनन इंशाअल्लाहुल अजीज कबूल होगी। जो हमारे भाई कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और इस वक्त जहां जहां जुल्म और सितम हो रहा है, तमाम मजलूमीन के लिए, तमाम महबूसीन के लिए, तमाम परेशान हालों के लिए, तमाम उन इंसानों के लिए जो जिस भी किस्म की परेशानी में मुब्तला है, उनके लिए दुआ की जाए। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, जो जिस मजहब से भी ताल्लुक रखने वाले हैं, उन पर अगर जुल्म हो रहा है, उन पर अगर ज्यादती हो रही है, उनके साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, उनके लिए भी दुआ की जाए। मगर याद रखिए आप कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि बड़ी अजीम रात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस अजीम रात में भी कुछ लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। उनमें एक शख्स वो है जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो। लिहाजा अपने वालिदैन के सिलसिले में आप मोहतात रहें। आपके वालिदैन, उन्होंने इस्लाम कबूल किया हो या वो गैर मुस्लिम हो, उनके साथ आपका बर्ताव जो है वो इंतहाई शरीफाना और इंतहाई मुशफिकाना और हमदर्दाना होना चाहिए। उनके हुकूक आपको फिर भी अदा करने, लिहाजा अपने वालिदैन के साथ बेहतर सलूक करने का आप वादा करेंगे पहले अल्लाह के साथ, माफी चाहेंगे पहले कि जो आज तक हमसे गलती हुई है उसे माफ कर दे, और आइंदा के लिए अज़्म करेंगे आप कि हम अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करेंगे। उसके बाद आप दुआ करेंगे, यकीनन आपकी दुआ कबूल होगी। एक इंसान तो यह है जो वालिदैन का नाफरमान, दूसरा जो कीना परवर इंसान, जो दिल में कीना रखते हो। कभी किसी ने आपके मुतालिक बुरी बात कह दी, आप हमेशा उसको दिल में रखते हैं और उसकी नफरत को पालते हैं आप अपने दिलों में, अपने सीनों में। ये इंतहाई बदतरीन, जिसे हम कहेंगे बदतरीन खसलत है ये इंसान की, बदतरीन सिफत है ये इंसान की, कि इंसान अपने दिल में किसी का कीना रखे। और अल्लाह को इतना नापसंद है कि इस अजीम रात में भी, जिसे कहा गया है कि 1000 महीने से अफजल ये रात है, इस रात में भी कीना परवर इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। लिहाजा अपने दिलों को मांजने की जरूरत है, अपने दिलों को साफ करने की जरूरत है। अपने दिलों को साफ करने के बाद इससे तौबा हम करें, इससे पलट कर आएं और माफी चाहें अल्लाह से कि आइंदा हम किसी के बारे में कीना अपने दिल में नहीं रखेंगे, और उसके बाद दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर हमारी दुआ कबूल होगी। और एक और इंसान भी आपने फरमाया कि वो शराब का आदी जो है, जो शराब पीने वाला शख्स हो, जो शराबी हो, उसकी दुआ भी इस रात में कबूल नहीं होती है। लिहाजा इसके लिए भी जरूरी है कि पहले हम तौबा करें, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं कि आज तक हमसे गलती हुई, हमसे ये गलत किस्म की चीज हमने इसे इस्तेमाल किया, शराब को इस्तेमाल किया। हम आज मुसम्मम इरादा करते हैं, तौबा करते हैं और इससे पलट कर आते हैं, आइंदा हम कभी भी इसको हाथ नहीं लगाएंगे। और अल्लाह जानता है कि आपको जबर करना पड़ेगा अपने दिल पर, आप अपने दिल पर सख्ती करेंगे और मजबूर करेंगे अपने आप को इस लत से छुटकारा दिलाने के लिए, और ये चीज जाया नहीं होगी। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे इंसान को तो मैं वहां पिलाऊंगा, वयुस्कौन फीहा कासन,
काना मिजाजुहा जंजबीला, जंजबील मिली हुई शराब इन्हें पिलाई जाएगी। बल्कि जिसका मर्तबा जितना बड़ा होगा, कुछ लोगों के लिए तो फरमाया अल्लाह ने, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि मैं तो ऐसे इंसानों को खुद पिलाऊंगा, खुद रब्बे कायनात पिलाएंगे। क्योंकि अल्लाह को मालूम होगा कि जिस शख्स को ये लत लग जाती है, इसे छोड़ना आसान काम नहीं, उसे जबर करना पड़ेगा अपने आप को। जब वो जबर करेगा, अल्लाह को पसंद उसकी ये बड़ी अदा आती है, ये अदा उसको बड़ी पसंद आती है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इसे खुद फिर शराब पिलाऊंगा, और उस शराब तहूर होगी, वो इंतहाई पाकीज़ा लजीज शराब होगी, उसमें कोई सड़ांद या कोई अफूनत या कोई बदबूदार वो शराब नहीं होगी, वो आला किस्म की शराब होगी जो इसे वहां पिलाई जाएगी। लिहाजा एक शराबी भी आज मुसम्मम इरादा करे कि आज के बाद मैं इस गंदी चीज, इस हराम चीज के करीब नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह आज तक के गुनाह जो है वो उसे माफ कर दिए जाएंगे। और इसके बाद जब हम दुआ करेंगे, लाजिमन हमारी दुआ कबूल होगी। इस अजीम रात को कहा गया है 83 साल 4 महीने से अफजल है ये एक रात। गोया आप 83 years and 4 months उसमें जितना भी आप अमले खैर करेंगे, नेक काम करेंगे, जो अजर आप पाएंगे उससे ज्यादा इस रात में आप अजर पाएंगे, इस एक रात में जितना आप करेंगे। अगर इसी हिसाब से आप देखेंगे कि इस रात का 1 घंटा जो है वो 9 साल से ज्यादा अफजल है। 1 मिनट इसका जो है वो 55 दिन से ज्यादा है। गोया 55 दिन में जितनी आप इबादत करेंगे उससे ज्यादा अफजल 1 मिनट की इबादत है। और 1 सेकंड को आप देखेंगे वो 22 घंटे हो जाते हैं। गोया इसमें हम कभी कभी ये देखते हैं कि इतने मिनट के लिए हम हंसी मजाक भी करेंगे, खेल कूद में भी रहेंगे, गपशप में भी रहेंगे, टेलीविजन या इस मोबाइल की तरफ भी राय हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसका एक एक सेकंड आप देखिए कितना कीमती है इस रात का, एक एक मिनट और एक एक लम्हा कितना कीमती है। लिहाजा मैं बड़े दर्द के साथ कहूंगा, मोहब्बत के साथ कहूंगा अपने तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से कि ये ताक रातें जो आने वाली हैं, इन ताक रातों में एक लम्हा भी हम जाया नहीं करेंगे, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएंगे। इसी तरह से ये 4 हिस्से बराबर करेंगे, नवाफिल का भी एहतमाम करेंगे, तिलावत कलाम पाक का भी एहतमाम करेंगे, इसके साथ साथ तस्बीह, तहमीद और दुरूद शरीफ वगैरह का भी एहतमाम करेंगे, और फिर दुआ का एहतमाम करेंगे। रब्बे कायनात हम सब इंसानों को, हम सब अपने जो उसके बंदे हैं, जो उसके हुजूर हम आए हैं, ये ठीक है कि हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं हुआ ये क्या वजह थी, इसके लिए भी वो मशहूर वाक़ा आपने कई बार सुना होगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाखबर किया गया था कि वो बिल्कुल वो इसका ऐलान फरमाते कौन सी शब है ये, लेकिन जब बाहर आए आप ऐलान करने के लिए तो 2 आदमी लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो आप उनको सुलह कराने में मसरूफ हो गए, आपको बुला दिया गया। यहाँ भी एक नुक्ता आप याद रखिए, इस झगड़े की नहूसत कितनी है, अल्लाह को नापसंद कितना है ये झगड़ा। आज तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झगड़ा करना बहुत पसंद करते हैं, हम फलां की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, हम ये दिखाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये झगड़ा जो है ये इंतहाई नापसंदीदा चीज है अल्लाह के नजदीक। इसी की वजह से एक खास जो इंतहाई अहम तरीन रात थी, जिसके बारे में हमें मालूम हो जाता कि ये कौन सी रात थी, उससे हमें महरूम होना पड़ा। और वजह क्या बनी? नहुसत, झगड़े की, लड़ाई की, फसाद की, फितने की। लिहाजा हम सबको इस दौर भी देखना चाहिए, जांचना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम झगड़ों से परहेज करें, हम दूर रहें अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नाफरमानी से, हम दूर रहें वालिदैन की नाफरमानी से, और हम दूर रहें कीना परवरी से। अपने दिलों में अपने भाइयों की मोहब्बत हम रखें, कीना, बुग़्ज़, हसद, अदावत, इन बीमारियों से अपने दिलों को हम पाक करें। अल्लाह ताला
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔